Hello student, welcome back to physics class. Today lecture number 18, chapter number 4, laws of motion. Okay, in the previous topic we discussed about the collision, type of collision, okay, and numerical based on that. Today we are going to start new topic, that is the torque and couple. Before going to start torque and couple, let's introduce the some terminology about the torque and couple, so that we'll find easy to understand. So many times we talk about particle, object, right? So what is this particle? How to define this particle? Particle क्या होता है? इतना सा, इतना सा, इतना सा, कितना बड़ा particle, right? Particle is very small, right? So look at the definition of the particle, scientific definition, okay? So that you can note down it afterwards by taking a screenshot. So see, particle is an object whose mass infinite, mass is finite, mass infinite, but whose size and internal structure can be neglected. Okay, we have to neglect the internal structure or negligible size, right? But it has a mass, particle has a mass. We consider particle mass is m, right? While solving the numerical. So that is what the particle system. When number of particles together, suppose if I have a chalk piece or chalk powder, so one that piece of that chalk powder, that is the particle. Particle, right? And when we are combining these chalk particles, right, fine particle, make it weight and formation of chalk. So chalk is the system, is the whole body, right? So what is the system? System is a collection of very large number of particles which mutually interact with one another. जो एक दूसरे को interact होते हैं. Then only there is the formation of solid, liquid and gases, right? मान लो if I take this solid ball, right? So this ball is made up of number of particles. They are trying to hold together, right? And these particles holding together with some force, right? And there is a formation of system. तो ये system होगा. अगर इसको बारीक बारीक तोड़ के तो क्या बन जाएगा? Particle बन जाएगा. Okay. So the body of finite size. Now अभी body क्या है? Finite size. System क्या है? Finite बन गया. But particle has no size and internal structure. But the system has finite size, mass and internal structure also. Okay, so body of finite size can be regarded as system because it is composed of the large number of particles interacting with one another. They are interacting with one another, right? Now what is the internal forces and external forces? दो टाइप का फोर्स होते हैं. तो इंटरनल मतलब जो पार्टिकल को अंदर बाइंड करके रखता है, दे ट्राई टू होल्ड इट. अगर मान लो सपोज मैंने ये बॉटल में पानी भरा, okay, if I fill the water in this bottle and just try to pour, what happen? There is no internal force, right? But when I pour the water in this bottle, so because of the internal force, or try to hold it get a shape of the container. Understood? But अगर इस बाहर फेंका तो पानी बहता जाएगा. But if I take the solid, right, so solid will be remain as it is. Okay, so because of the internal forces. So what is the internal force? The mutual forces exerted by the particle of a system on one another आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेज. जो अंदर के अंदर म्यूचुअल फोर्सेज एग्जर्ट होते हैं पार्टिकल के अंदर, एंड दे ट्राई टू होल्ड टू ईच अदर, एक दूसरे को ऐसे बांध के रखते हो लोग, राइट, पार्टिकल. दैट्स वाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ शेप, साइज फॉर द ऑब्जेक्ट. ओके, देन द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? द आउटसाइड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स. सच फोर्स changes the velocity of an object. बराबर है. अभी मान लो if I take this path along with this body is rolling, this ball is rolling, okay. अभी ये रेस्ट पे, this ball is at rest. If I apply the external force, अगर मैं बाहर का फोर्स लगाऊंगा तो it will change its speed, change its direction and sometime the change in shape also, right. मान लो अभी ये बॉटल है, right. If I am applying a force, external force, what happen? The shape of the bottle का shape change हो गया. Why? Because of external forces acting on an object so that the object changes its dimension, changes its shape and size. Okay, or if I apply the force, if I apply the external force, it can move in translatory motion. Okay, that is called as the external force. Now next point is very important in this regarding. So that is the center of mass. Center of mass of a body is defined as the point where the whole mass of the body supposed to be concentrated in order to study, in order to describe the translatory motion, right.
अभी देखो यहाँ पे ये बॉल है, व्हेन दिस बॉल इज रोलिंग ऑन दिस सरफेस, जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, राइट, तो ये बॉल के अंदर एक पॉइंट है, राइट, इन दिस बॉल देर इज वन पॉइंट, दैट पॉइंट डिस्क्राइब ट्रांसलेटरी मोशन एंड रेस्ट ऑफ द ऑल अदर पार्टिकल्स, रेस्ट ऑल ऑफ द पॉइंट्स दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, राइट। अभी ये पार्टिकल होगा, ये होगा, जो भी मतलब बाउंड्री पे जो भी होगा पार्टिकल, वो सब क्या है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। लेकिन देर इज वन पॉइंट इनसाइड दिस बॉल, ओके, दैट परफॉर्म द ट्रांसलेटरी मोशन, वो सीधा जाएगा, एक ही लाइन में जाएगा। सो दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। हम उसको सेंटर ऑफ मास में डिटेल में अगले टॉपिक में बढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन सीखना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे कि अभी मान लो इफ आई एम टेकिंग, वेयर शुड आई ड्रॉ द डायग्राम, सपोज इफ आई टेक दिस कॉइन, अगर कॉइन लिया, ओके, कॉइन पे यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस पॉइंट सेंटर ऑफ द कॉइन, राइट, व्हेन दिस कॉइन इज रोलिंग ऑन द सरफेस, सो दिस पॉइंट विल परफॉर्म द ट्रांसलेटरी मोशन। तो वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास, वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द ट्रांसलेटरी मोशन और इट ओबेज द लॉज ऑफ मोशन। Center of gravity is different and center of mass is different. Both are different phenomena in physics, but generally we are considering the same point. Okay, symmetric के लिए शायद हो सकता है कुछ कुछ बॉडी में symmetric, the body is symmetric, then the center of mass and center of gravity will be same. Okay, but for asymmetric body both are different. So next is rigid body. We are using this word many times. जब हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं यार बहुत रिजिड है, कितना रिजिड बात करता है, बराबर, कितना रिजिड बात करता है, कितना रिजिड है वो, बोलते हैं ना कि अरे तेरे हार्ट को कोई फ्लैश नहीं किया, दगड़ा सा बन लेगा तुझे, वी आर टॉकिंग लाइक दिस, ओके। सो रिजिड मतलब क्या, वेरी हार्ड, ओके। सो इफ इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी इफ इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स साइज एंड शेप, however large the external force may be acting on it, right। अभी मान लो I am taking example, okay, let us try to understand the meaning of rigid body। अभी देखो I have two balls, मेरे पास दो बॉल है, right, one I am taking this season ball जो क्रिकेट में प्लेयर खेलते हो, just apply the force, right, it's very hard, not possible to deform this ball, deform ही नहीं हो रहा है, right। So this body is said to be rigid because there is no change in its size and shape। अभी इसका साइज और शेप चेंज हो रहा है क्या, even I am applying a very large force, see with this does not change, very hard, okay। Now if I take another body, right, just take this ball, now this ball easily deform, this ball can be easily deformed, right। So this is known as a non rigid body, इसको हम क्या बोलेंगे, this is called as a non rigid body, right। So and generally if we see practically there is no such a rigid body, कोई rigid body नहीं, because why, because if we apply the large force with the hammer, मान लो stone लिया, right, अभी rigid body का अगर example देने तो stone है, metallic sheet है, metallic rod है, right, ठीक, metallic rod, stone, metal जो भी है, तो glass का जो box होता है, block होता है वो, that is also rigid, बट लेकिन उस पर हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, मतलब इट इज नॉट रिजिड, बट वी कंसिडर इट प्रैक्टिकली, हम हमारे एग्जाम के लिए हम क्या करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं इट इज द रिजिड बॉडी। वी आर सिटिंग ऑन अ बेंच, तो बेंच क्या है, रिजिड है, इमीडिएटली बेंच छूटता है क्या, बैठने के बाद नहीं बैठ, वो ज़्यादा हो गया था उसको यूज़ के बाद वो डैमेज होगा, राइट, अदरवाइज इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ रिजिड बॉडी, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस concept, so take a screenshot। Now we will come to the original point।
So we have discussed about the rigid body. Okay, as there is no change in position, change in displacement of the two particles inside it, they do not change their position, right? They pertain the same position even though the large force applied on the body. Okay, so practically the steel, then glass, then thick metallic rod, thick metal rod, stone, these are acting as a rigid body. Okay, now the next is, see the question very good. Direct I will write the question based on the turning effect of force, turning effect. Before going to study the turning effect, what do you mean by force? हम force क्या बोलते हैं? जैसे अभी देखो यहाँ पे ये body है. Okay, if I take this body, when I am applying the force on this body, if I am applying the force, look at me everyone, if I am applying force this position at the center. Okay, so this is the force due to the body perform the translator motion. ये होगा force, right? लेकिन there is the one force that gives the turning effect of a body or turning effect of force. See, I am applying a force at the corner of this duster, right? See what happened, it turns, it rotates. Okay, so the force due to which the body perform the rotational motion or body rotate, that force is known as a turning force, turning effect of force, which we call torque or moment of force. It is also called as torque or moment of force. Okay, so is the ability to change the state of rotation. Okay, turning effect of force is the ability to change the state of rotation of a body, right? And this turning effect, so maybe from the start this change may be from rest to motion. Okay, rest to motion or from motion to rest, from motion, अगर वो घूम रही रोटेट हो रही तो उसको रुकाने का, motion to rest, it come to rest because of that turning effect. अगर कोई भी मैं एग्जांपल देता आपको, और one speed to another, और change in speed from one change in speed. Okay, और change in direction. अभी देखो यहाँ पे we have the see, I have this wavelet. Everyone using this, the students are playing with this many times. Okay, so see, when I am applying a force, अभी अगर ऐसा फोर्स लगूंगा तो सीधा वो ट्रांसलेटिव मोशन जाएगा, बट व्हेन आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स एट द एज, सी what happened, the body rotates, it rotates. So this force gives, see, if I am applying force like this force gives the turning effect. What do you call this? This is called as a torque or moment of force. This is also known as torque or moment of force. Another example of turning effect of force is while closing the door, opening the door. Okay, or any other example, while windows जो भी है, right? Especially we are using this door, close and open. So what is the force we applied to close or to open the door? That is the turning effect of force, which we call torque or moment of force.
right? So I hope you all have got the concept of this. Now wheel can be set into rotation. अभी मैंने बताया जो wheel है set into rotation. तो इसके एग्जाम्पल अगर देना है तो push or pull the door, okay. Then about the hinges axis, okay. Wheel can be set wheel can be set into rotation by applying turning of force, by applying tangential force or impulses. Tangential impulses, हमने impulse का हमको पता है. What do you mean by impulse? Impulse is the large force acting on a body for short interval of time which you call impulses on its rim. अभी जो wheel घूम रहा था, वेवलेट जो घूम रहा था, ये wheel ही एक प्रकार का, ओके. इसके रिम पे मैं फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स. दिस इज impulse so that it can rotate, okay. So this is all about the turning effect of forces, and this turning effect is also known as a moment of force. This turning effect of force is called torque or moment of force, which is denoted by tau. उसको सिंबल क्या है? tau. See, I am writing a spelling. Tau is उल्टा lateral inverted j लिखने का, okay. Lateral inverted j, tau. Spell is TOU, tau. The pronunciation is tau. So this symbol is used for torque, okay. Then it is the rotational analog of the force. It is rotational analog, same as that of the force in linear motion. कोई भी बॉडी अगर linearly मूव हो रही है तो हम क्या फोर्स लगाते हैं? लीनियर फोर्स, ओके. सो दैट द बॉडी कैन मूव लीनियर मोशन. बट इफ द फोर्स ड्यू टू विच द बॉडी कैन रोटेट, so that is the turning effect of force or moment of force, okay. So it is the rotational analog of a force, Now it depends on two factors, okay. Depends on the factors on which it depends, okay. The first factor is the magnitude of force applied, okay. Second, the perpendicular distance जो है, perpendicular distance of the line of action of force, perpendicular distance between the axis of rotation and line of action, LAC. अभी आजकल LAC बहुत इशू चल रहा है, चाइना का. लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, ओके. लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्शन कंट्रोल जो है, दैट इज कॉल्ड LAC, लाइन ऑफ एक्शन, okay. Perpendicular between axis of rotation and line of action of a force, that is called as टर्निंग इफेक्ट. अब इसका डायग्राम हम इमेजिन करेंगे तो कैसा होगा. तो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. सो लेट्स टेक अ रिजिड बॉडी. अभी हमको हर बार यूज करना पड़ेगा रिजिड बॉडी, राइट. आप बोलोगे रिजिड बॉडी, अगर डग लिया, कनिक जो फ्लोर डग लिया, रोटी का जो आटा होता है, जो हम रोटी बनाते हैं, वो डग लिया, इज इट रिजिड? नो. उस पर थोड़ा पोर्ट लगा तो प्रेस हो जाता है, राइट. तो वो रिजिड बॉडी नहीं चलेगा. तो रिजिड बॉडी यहाँ पे द बॉडी विच डू नॉट डिफॉर्म इवन दो द लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ओके. सो हियर आई एम टेकिंग अ एग्जाम्पल ऑफ दिस रिजिड बॉडी. ये रिजिड बॉडी है, राइट. कंसिडर द पॉइंट यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी रोटेट. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं. सी दिस इज द व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स, so that when the body rotating or about which it is
रोटेट, राइट. सो कंसिडर द पॉइंट. अभी ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे लेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, पी पॉइंट लेंगे. लेट दिस पॉइंट पी, ओके. एंड हियर आई एम अप्लाइंग अ फोर्स. यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ. दिस इज द फोर्स एक्टिंग, फोर्स एफ, ओके. एंड दिस इज द पॉइंट about which it rotates, okay. Then join this, let this is R, this is R, okay. Now I have to imagine this will be going further. A direction of force F है, यहाँ पे फोर्स लगाया मैंने, right. So I have to draw the perpendicular from O to here N. N पे यहाँ पे perpendicular draw करूँगा मैं. So this angle is 90 degree. यहाँ पे क्या होगा, 90 degree होगा. Okay, so this is called as the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force, and this is the point of application of force, and this is the line of action of force. This is the line of action of force. ये क्या है, line of action of force, line of action of force, and this is the point of application of force. जहाँ पे मैंने फोर्स लगा है, point of application of force. Fine. And this is the perpendicular distance. इसको मैं r perpendicular भी ले सकता हूँ, r perpendicular और small d भी ले सकते हैं. We can use any symbol here. Either you can take small d or r perpendicular. Okay. And this angle made by, अभी यहाँ पे जो एंगल बना है, the angle made by the लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस पोजिशन वेक्टर, ये पोजिशन वेक्टर है, तो ये आएगा थीटा, तो ये भी आएगा थीटा. फाइन. सो हियर, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. ओके. सो हियर लेट्स अप्लाई द ज्योमेट्री. ओके. सो ज्योमेट्री विल बी हियर साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, sin theta will be on upon this r, okay. But on कितना है, on is d upon r, so d is equal to r sin theta, d is equal to r sin theta, okay. So this is the perpendicular distance. So here formula for the torque is equal to force, magnitude of force multiplied by perpendicular distance from the axis of rotation, So here tau is equal to f into d. यहाँ पे क्या आएगा, d आएगा, f into d, okay. But what is d? d is r sin theta, okay. So f into r sin theta which can be written, अभी यहाँ पे इसको एफ आर साइन थीटा मैग्नीट्यूड है. अभी यहाँ पे हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट. सो हाउ कैन वी राइट दिस इन द वेक्टर फॉर्म. इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज, पहले आर आएगा आर बार क्रॉस एफ बार, ओके. आर बार क्रॉस एफ बार विच कैन बी रिटन एज एफ आर साइन थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं. मैग्नीट्यूड में कहीं भी उल्टा कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. यहाँ पे डायरेक्शन है, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पे एफ इंटू आर नहीं लिख सकते, भी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ओके. सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके. तो जो ये जो आर है, दैट आर वी हैव टेकन इन टर्म्स ऑफ द साइन थीटा, ओके. डी क्या है, d is the perpendicular distance, r perpendicular which is equal to d. यहाँ पे मैं r perpendicular भी ले सकता हूँ, which is equal to r perpendicular and the perpendicular distance from the axis of rotation. So this is all about the torque. तो हम उसको क्या बोलते हैं, torque और moment of force, right. Now what are the factor on which the torque depends? The tau depends on the magnitude of force. कितना फोर्स लगा रहा है उस पर डिपेंड करता है, या perpendicular distance between the axis of rotation and the point of application of force or line of action of force. जब हम दरवाजा ओपन करते हैं, while opening the door, right, तो जब डोर ओपन करते हैं, सी सपोज ये मेरा डोर है, ओके, आई एम होल्डिंग लाइक दिस, ये डोर है. व्हेन
I want to open this door, right? So where I have to I am applying this knob, the handle of the door is placed over here, यहाँ पे लगा है, हैंडल जो है यहाँ पे लगा रहता है, इसलिए वाई, बिकॉज थोड़ा भी फोर्स लगा है तो वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, राइट? अभी देखो यहाँ पे ये डोर है, दिस इज हिंज ऑफ द डोर, ओके, और यहाँ पे मैंने लगाया फोर्स, बीच में लगा है, तो बीच में अगर लगा है थोड़ा सा फोर्स तो ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है, डज नॉट मूव मोर, ओके, बट व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, अभी तो बढ़ रहा है, वही उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स, अभी यहाँ पे लगाया, यहाँ पे अगर लगाया तो एट द हिंजेस फोर्स लगाया तो विल द door will open or close? Not at all, not possible, okay. So I have to apply the force the little bit away from the hinge, यहाँ पे लगा है तो ज़्यादा फोर्स लगा है जरूरत तो टू रोटेट, यहाँ पे see now, see it move more. Now when I am touching, when I am applying the force at the edges, it can rotate very fast. Why so? Because the torque increases. Torque depends on the perpendicular distance from the axis of rotation. ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये बढ़ गया है, राइट? तो यहाँ पे ये हिंजेस है, राइट? और ये जो है दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे एफ लगा है मैंने, और ये क्या है, डिस्टेंस है, दिस इज अ डिस्टेंस आर, ओके. सो हियर आई कैन अप्लाई द फोर्स. सो दैट्स वाई द हैंडल्स ऑफ द डोर आर फिक्स एट द एज, नॉट इन मिडल, नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर. सो हमेशा वो एजेस पे ही रखा जाता है. क्यों? अगर छोटे बच्चे को बोला कि बाबा दरवाज़ा खोल के आए, तो वो क्या करेगा, ही विल अप्लाई द फोर्स एट द एजेस. थोड़ा भी फोर्स लगाए तो आराम से दरवाज़ा लग जाता है, बराबर, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन टॉर्क बढ़ जाता है अगर डिस्टेंस बढ़ा है तो. फाइन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स, ओके. तो बच्चों यहाँ पे अभी वी विल राइट द डायमेंशन. अभी इसका डायमेंशन लिखेंगे. द डायमेंशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ the distance, that is r perpendicular, okay. The perpendicular distance लेंगे हम यहाँ पे. So it can be written as, what is the dimension of force? m raised to 1 L1 t minus 2, okay, into what is the dimension of r m0 L1 t raised to 0, and the resultant dimension you will get, resultant dimension क्या मिलेगा? That just you have studied dimension analysis in the chapter 1, okay. So you can write m raised to 1 L raised to 2 t raised to minus 2. So this is the dimension of torque. आपने देखा होगा ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी का भी डायमेंशन है. कैन यू रिकॉल इट? रिकॉल कर सकते हैं आप? यस, इट्स वर्क. वर्क का जो फॉर्मूला है एफ इंटू एस, वो भी एफ इंटू एस है, राइट, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट. सेम यहाँ पे भी टॉर्क है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों का यहाँ पे डायमेंशन सेम है, राइट. डायमेंशनली दे आर इक्वल बट यूनिट अलग अलग है, राइट. अभी एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क निकालेंगे. एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क, एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स. अभी ये मोमेंट ऑफ फोर्स थोड़ा आउटडेटेड होते जा रहा है. इंस्टेड ऑफ दैट वी आर यूजिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. हम क्या बोलते हैं उसको? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और सिंपली टॉर्क, ओके. सो एस यूनिट ऑफ टॉर्क विल बी, व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, न्यूटन. व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर. सो इट इज अ न्यूटन मीटर, एनएम, ओके. और सी जी एस यूनिट क्या होगा बच्चों? सी जी एस यूनिट विल बी फोर्स मेजर्ड इन डाइन, तो इट इज डाइन. Distance measured in centimeter, dyne centimeter. Fine. So these are the SI unit and CGS unit. Right. Now this torque is a vector quantity. Torque क्या है? Vector quantity, right? Because now how to determine the direction of this torque? Okay. For example, suppose अगर मैंने if I am holding this, okay, see, I have holding this thumb in the upward direction and my curved fingers, okay, I am holding this in the right hand. So one is R, a R है और a force है, right. So when it rotate from R to F, so it will go upward, so it is anti-clockwise. तो anti-clockwise rotation क्या देगा? Positive torque, torque will positive. Okay, if I reverse the direction of my right hand, right,
सो F2R जाएगा, अगर उल्टा गया तो F2R, तो इट विल बी गो डाउन. इफ यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ F इंटू आर, F को पहले लिया, R को बाद में लिया. देखो अभी ये जो ब्लैक मार्कर है और ब्लू मार्कर है, राइट, तो ब्लैक मार्कर क्या है F है और ब्लू मार्कर क्या है R है. तो इफ आई एम रोटेटिंग दिस, ओके, क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन घुमाऊंगा तो ये नीचे जाएगा, तो द टॉर्क विल बी इन द डाउन डायरेक्शन. इफ आई एम रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दूंगा तो द टॉर्क विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क. ओके, सो लेट अस राइट दिस पॉजिटिव टॉर्क एंड नेगेटिव टॉर्क. सो पॉजिटिव टॉर्क विल बी देयर if it rotates anti-clockwise. तो यहाँ पे ये केस है एंटी क्लॉकवाइज. एंड नेगेटिव टॉर्क कब होगा? नेगेटिव टॉर्क विल बी व्हेन इफ इट रोटेट क्लॉकवाइज. राइट, सो सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे अगर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू माइनस आर क्रॉस एफ. यहाँ पे क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, इसे जाएगा क्लॉकवाइज. ओके, यहाँ पे क्या आएगा, आर क्रॉस एफ. तो यहाँ पे निगेटिव साइन है, फिर नीचे जा रहा है. सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डिटरमाइन बाय द राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल. जो स्क्रू रूल मैंने लिखवा दिया है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या राइट हैंड थंब रूल भी. राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन द राइट हैंड इन सच वे दैट curl the fingers around the this, okay, and thumb in the upward direction. Okay, so curled finger gives the direction of sense of R and F, whereas the stretched thumb gives the direction of torque acting on it. और ये जो torque है, torque will always perpendicular to the plane of the figure, plane of the paper. Okay, जैसे मान लो ये plane लिया मैंने, तो ये plane पे torque हमेशा perpendicular रहेगा, राइट. और उसके अलग अलग सिम्बॉल्स हैं, वो हम देखने वाले कि हाउ टू राइट इन सिम्बॉलिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉर्क. सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क. Fine. So coming out of the paper, it will be like this. So बाहर आ रहा है, out of plane or paper. Okay. And this will be जो क्रॉस रहेगा, that will be going into the paper, going into the paper. एंड ये जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. सो दीज आर द सिंबल्स. डॉट होगा तो गोइंग आउट, कमिंग आउट ऑफ द पेपर, और अगर क्रॉस होगा तो इनसाइड द पेपर. अंडरस्टैंड? सो हियर वी गॉट द फॉर्मूला दैट इज आर एफ साइन थीटा. यहाँ पे टाउ मिल गया हमको. अब इसके अलग अलग केसेस है, अलग अलग कंडीशन है कि व्हेन द टॉर्क विल बी मैक्सिमम, व्हेन द टॉर्क विल बी मिनिमम, राइट, वो हमें भी देखते हैं. तो उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Okay, so
कन्वेंशन ऑफ, अभी अलग अलग जो केसेस है देखने, डिफरेंट केसेस ऑफ द टॉर्क. स्पेशल केसेस. सो फर्स्ट केस, इसका डायग्राम इमेजिन करेंगे हम लोग. X, this is Y, this is Z. Okay, then here this is the point P, this is the point of application of force. ये P point है, right? यहाँ पे मैं force लगाया, force is acting like here F, right? And this is the line of action of force. ये line of action of force है, and this is point O about which the body rotate. तो यहाँ से मैं perpendicular draw करूँगा. This is perpendicular drawn from this point. Okay, so this will be the vector R, and this is F. So this is also parallel to this. तो ये F है तो ये भी F रहेगा. Okay, तो यहाँ पे ये जो एंगल है, सी दिस इज R, ये R है, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा. तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, बराबर. सो दिस इज थीटा. अभी हमको फॉर्मूला क्या हमारा, we have a formula for torque, tau is equal to RF sin theta. Okay, तो पहली केस क्या है, if theta is equal to 0 degree or 180 degree, that is anti parallel. Okay, so 0 degree मतलब parallel और anti parallel. If the forces are acting parallel or anti parallel. अभी मैं पहले इसका एग्जाम्पल डेमो दिखाता हूँ आपको, सो दैट यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर. राइट, मान लो ये रोटेटिंग बॉडी, आई एम रोटेटिंग दिस बॉडी अबाउट दिस. ओके, ऐसे घूम रहा है. राइट, सो दिस इज, ये रोटेट हो रहा है. अब तो देखो, इसको अगर मुझे घुमाना है, इफ आई हैव टू रोटेट दिस, तो क्या होगा, मुझे फोर्स परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा सर, देन इट रोटेट. ओके, नाउ बट इफ द अप्लाई द फोर्स दिस वे, अगर ऐसे लगाया या ऐसे लगाया टू दिस, राइट, तो इससे टेंजेंशियल लगाया तो नहीं होगा. राइट, आई हैव टू अप्लाई द फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस. ओके, या फिर मान लो ये डोर लिया, यहाँ पे ऐसा लगाया, सी दिस इज F और ये आएगा R. राइट, तो देखो R और F हाउ दे इंक्लाइन 90 डिग्री. लेकिन मैं इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स दिस वे, देखो अभी ऐसे फोर्स लगा होगा तो रोटेट होगा क्या, वो नहीं होगा, बिकॉज दिस फोर्स इज थीटा इज इक्वल टू 0. इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स दिस वे, अगर ऐसे फोर्स लगाया तो डोर लगेगा क्या, ओपन क्लोज होगा क्या, नहीं होगा, इट विल नॉट रोटेट, डोर विल नॉट रोटेट इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स दिस वे, बिकॉज ये क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. राइट, सो दैट केस देर इज नो टॉर्क. सो टाउ इज इक्वल टू RF साइन 0, बट साइन 0 कितना है, ज्योमेट्री के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में साइन 0 0, सो RF इंटू 0, सो इट इज 0. सो नो टॉर्क, दैट द टाउ मिनिमम इज इक्वल टू 0. सो इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग, इस पर जो फोर्स लग रहा है अगर तो पैरेलल लगा रहा है या एंटी पैरेलल लगा रहा है, तो नो टॉर्क विल क्रिएट, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा. अंडरस्टूड. सो टॉर्क विल बी 0. सो इट कैन नॉट रोटेट. अगर टॉर्क ही नहीं तो क्या होगा, रोटेट ही नहीं होगा, चाहे कुछ भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लो आप, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, लेकिन फोर्स एंगल कितना है, द एंगल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री. सो देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ टॉर्क, टॉर्क ही नहीं रहेगा, टॉर्क विल बी मिनिमम 0. सेकेंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर. सो टाउ इज इक्वल टू RF साइन 90 विच इज इक्वल टू RF into 1 which is RF. So maximum torque will act on it. See, अभी देखो, see this is my door. Okay, ये हिंज है जो मैंने पकड़ा, वहाँ पे वो हिंज है, हिंज पता है ना, वो hinges where it is fixed. Okay, so when I apply the force this way, अभी देखो मेरा, look at my right hand, how I am applying a force perpendicular to the R. Okay, so R और F के बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री.
अंडरस्टैंड. अगर मैं एंगल को कम किया, इफ आई एम रिड्यूसिंग द एंगल दिस सी, तो टॉर्क विल बी लेस. और कम किया 0. इफ आई एम इंक्रीजिंग द एंगल, जैसे जैसे एंगल बढ़ा जाऊंगा अप टू 90 डिग्री, राइट, तो 90 डिग्री पे टॉर्क विल बी मैक्सिमम. अंडरस्टूड. ओके. सो सेकंड केस आएगा क्या बच्चों यहाँ पे. सो टाउ इज इक्वल टू आर एफ विच इज मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस when the force acting perpendicular to the force acting perpendicular to the plane of the body, perpendicular force लगा है, it will be maximum. थर्ड केस क्या है? थर्ड केस अभी फोर्स कांस्टेंट रखा मैंने, आई एम कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट, राइट. मान लो मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाना है, राइट. इफ आई एम अप्लाइंग 5 न्यूटन फोर्स हियर, यहाँ पे लगा है, ज़्यादा नहीं हिल रहा है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा है, अभी ज़्यादा हिल रहा है. हियर सेम फोर्स अप्लाई, हियर फोर्स इज सेम. व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट चेंजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे मैंने अगर आर बढ़ाया, इफ आई इंक्रीज द आर, देन द टॉर्क acting on a body will also increase. Okay, so what is the third parameter? That is the perpendicular distance. Okay, so to perpendicular distance between axis of rotation and line of action of force. ओके. तो यहाँ पे अगर ये बढ़ाया मैंने, ये डिस्टेंस बढ़ाया, राइट, तो डिस्टेंस बढ़ाया तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे लगाया तो और बढ़ेगा, तो मैक्सिमम टॉर्क विल एक्ट ऑन इट. सो आई हैव टू इंक्रीज दिस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. दैट इज ऑल्सो थर्ड पैरामीटर. ओके. So R is maximum. So moment of force depend not only on the magnitude and force, direction of the force, but also the rotation. Okay, same force can have the different torque as its point of application. तो point of application अगर change किया तो भी torque change हो जाएगा. Okay, so these are the 3 to 4 cases, different cases of the torque. तो इसका screenshot ले लो फटाक से. ओके, आई होप सबको आज समझ में, थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ मैं इधर 2 मिनट में. टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ओके, टर्निंग इफेक्ट गिव्स द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी. इफ द फोर्स एक्टिंग एट वन पॉइंट समवेयर सो दैट इट विल परफॉर्म द ट्रांसलेटिव मोशन, सो लीनियर फोर्स होगा. बट इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी so that the body can perform the rotation motion, so that will be the turning effect, which we called moment of force or torque. Understand? Okay, so that is the, so ये यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, एंड डिफरेंट केसेस भी हमने सीख लिया है. अभी जो नेक्स्ट जो है दैट इज ऑल्सो दी मोमेंट ऑफ फोर्स. उसको भी मोमेंट ऑफ फोर्स ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे सिंगल फोर्स लगा है. ये जो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे सिंगल फोर्स लगा, वन फोर्स वी आर एक्टिंग, राइट. वी आर अप्लाइंग द फोर्स एट वन पॉइंट. अभी 2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन. अभी 2 फोर्सेज लगाने मुझे. उसके पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, राइट. अगर मान लो मुझे, if I have to open this cap of the bottle, right, अगर मैं सिंगल फोर्स लगाऊंगा, सी, इज इट पॉसिबल टू ओपन दिस कैप ऑफ द बॉटल, जो बिस्लेरी बॉटल है, राइट. तो इसका जो है बिस्लेरी बॉटल का, इसका ये खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा है, राइट. सो क्या होगा यहाँ पे? तो आई हैव टू अप्लाई दी 2 फोर्सेस. सी, आई हैव टू अप्लाई दी 2 फोर्सेस. अंडरस्टूड? So what are these? These are the 2 equal in magnitude, opposite in direction. See, it can open, right? If I am applying single force, torque, सिर्फ torque लगा तो नहीं होगा, moment of force लगा तो नहीं होगा. तो I have to apply the 2 forces at 2 different points. 2 forces at 2 different points, but they are equal in magnitude. एक भी अगर unequal रहा तो नहीं चलेगा, it will not perform. And this force is known as moment of couple. couple मतलब जोड़ी, 2.
यहाँ पे कपल वर्ड यूज किया है, मोमेंट ऑफ कपल, सो दैट वी कैन अप्लाई दी टू फोर्सेस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स सो दैट द बॉडी कैन परफॉर्म दी रोटेशनल मोशन. Understood? So that is known as moment of couple. So let us see this moment of couple. Okay. Give the next title बच्चों, moment of couple. So write down the definition. A pair of equal in magnitude and opposite forces acting on a body along two different lines lines of action और at two different point भी बोल सकते हैं, lines of action constituent a couple. So this is very important question exam point of view because कई बार इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, डिफाइन द कपल. ओके, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है कपल में? इक्वल वर्ड होना चाहिए, इक्वल अपोजिट भी होना चाहिए, अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अलॉन्ग दी टू डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ कपल. ओके, चलो बच्चों अभी इसका अगर एग्जाम्पल लेना है तो वेयर वी आर यूजिंग दिस. अभी मैंने टू ओपन द कैप ऑफ अ बॉटल एग्जाम्पल, टू ओपन कैप ऑफ अ बॉटल. ओके, स्टीयरिंग व्हील वी अप्लाई द कपल. लेकिन आजकल पावर शेयरिंग है तो एक हाथ में हम मोबाइल पे बात करते हैं, एक हाथ से हम गाड़ी चलाते हैं, लेकिन गलत है वो, राइट. सो यू हैव टू अप्लाई बोथ दी हैंड्स फॉर स्टीयरिंग द व्हील. ओके, लेकिन आजकल इतना सॉफ्ट, जो पुराने गाड़ी है ना ये ST वगैरह, वो सिंगल हाथ से नहीं होता है, उसको दोनों हाथ पे फोर्स लगना पड़ता है तभी वो घूमता है, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड. अभी पावर शेयरिंग आ गया तो एकदम हल्का सा भी थोड़ा उसको फोर्स लगाया तो भी वो रोटेट होता है स्टीयरिंग में. ओके, और तीसरा जो है टू ओपन द टैप ऑफ, जो टैप होता है ओपन द टैप, राइट, वाटर टैप, टू ओपन वाटर टैप, जो पानी का नल होता है, पानी का नल को भी हम दो फोर्स लगाते हैं, देन इट इज़ पॉसिबल टू ओपन. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ कपल. ओके, देखो बच्चों अभी इसका डायग्राम कैसा होगा मोमेंट ऑफ कपल का. लेट्स इमेजिन द डायग्राम. ये रिजिड बॉडी ले लें, राइट. सो दीज आर द 2 points where we are applying force. Let the point A, let the point B, and distance between them, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस आई एम टेकिंग स्मॉल d फॉर माई रेफरेंस. ओके, एंड दीज आर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. सो वन फोर्स एक्ट डाउनवर्ड्स, नीचे आएगा एक फोर्स, नीचे एक आएगा, और एक फोर्स ऊपर आएगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा. फाइन. सो लेट दिस फोर्सेस एंड बोथ आर इक्वल. एफ रहेगा, दोनों एफ रहेगा, यहाँ पे दोनों एफ रहेगा. ओके, बट ओनली थिंग इज दैट कि वन विल बी नेगेटिव, वन विल बी पॉजिटिव. अंडरस्टैंड, फॉर द डायरेक्शन. देन सो हियर what is the couple, moment of couple, right? Moment of couple is equal to the
एनी वन ऑफ द फोर्स, कोई भी एक फोर्स लेने का, एनी वन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ फोर्स, एनी वन ऑफ द फोर्स, एनी वन ऑफ द फोर्स, दोनों में से एक ही लेना है कोई भी, ओके, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance between two forces, between two forces, so which can be written as F, कोई भी एक फोर्स लिया, multiplied by AB, ओके, लेकिन AB क्या है, AB is D, F into D, so ये हो गया फॉर्मूला सेम, दैट इज ऑल्सो टाउ, और सिंपली मोमेंट ऑफ कपल लो इसको, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, fine. This moment of couple also represented by the tau symbol, F into D. इसका भी डायमेंशन वही रहेगा, फॉर्मूला भी वही रहेगा, ओके. सो नाउ हियर आल्सो मोमेंट ऑफ कपल इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, टर्निंग टेंडेंसी ऑफ टू फोर्सेस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट. So moment of couple is defined as the product of force, any one of the force, कोई भी एक force ले लो, any one of the force and the perpendicular distance between these two points, okay, two forces. यहाँ पे axis of rotation नहीं है, कोई भी कुछ भी हो सकता है axis of rotation, it is independent of the axis of rotation. Moment of couple is independent of the position of axis of rotation. लेकिन जो हमने टॉर्क दिया, डिफाइन किया, टॉर्क में जैसे हम दरवाजा ओपन करते, क्लोज करते, ओपन करते, उस टाइम पे वी कंसिडर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. देन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द फलक्रम और द पॉइंट ऑफ रोटेशन. सो हेंस यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हेंस नोट दिस पॉइंट, टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल, टॉर्क or moment of couple, moment of couple, moment of couple is the is independent of, is independent of, ये बहुत important है, independent of the choice of the fulcrum or point of rotation, point of rotation, okay. जो हिंज बोलते हैं उसको फलक्रम बोलते हैं, राइट, व्हेन इट रोटेट्स. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. सो नाउ लेट अस, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन हम करेंगे. Let us derive an expression for torque. Derive an expression for torque. Okay. अब यहाँ पे मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन करूँगा. आई विल जॉइन दिस, यहाँ पे जो पॉइंट है, जो आई विल जॉइन दिस पॉइंट, लेट दिस डिस्टेंस इज, this distance is r12, so this will be r21, this is okay. This distance is r12. Let this force is F1, this force is F2. Actually both are equal. वो हम बाद में उसको नोट करेंगे. Both the forces are equal in magnitude and opposite in direction. Okay. So here the forces are F1 is equal to F2 is equal to F.
but f1 bar is equal to minus f2. This negative sign indicate that they are opposite है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, बराबर. बोथ दी एंटी पैरेलल फोर्सेस है, दोनों एंटी पैरेलल फोर्सेस और इक्वली मैग्नीट्यूड है. ओके, सो लेट्स राइट दिस. यहाँ पे हम उसको डिराइव करेंगे. सो f1 इज इक्वल टू f2. नाउ पोजिशन वेक्टर एट एनी पॉइंट, व्हाट आर दिस? r21 r12 is the position vector okay, drawn from any point, right? तो यहाँ से लिया मैंने, ये पॉइंट से f1 पे जाएगा, so that is r12. okay, r12 is the vector at any point on the line of action of force f1. यहाँ से ड्रॉ किया है तो r12 आएगा from a to f1. okay, so from the line of action force f2. तो ये then the r12 क्या है? r12 is the position vector of any point on the line of action of force. Position vector drawn from the any point on the line of action of force f1 from the line of action of force f2. देखो यहाँ पे ये जो r12 है, r12 कहाँ से ड्रॉन किया है? फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ f2, दैट इज r12. कहाँ तक? f1 तक. अभी r21 क्या आएगा? r21 बार इज इक्वल टू, ओके, r21 इज द पोजिशन वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स f1 टू f2. ओके, तो इसका एरो ऐसे आएगा, इसका एरो यहाँ पे आएगा. सो मेक अ नोट ऑफ दिस. द पोजिशन वेक्टर drawn at any point on the, okay, any point on the f2 which is drawn from line of action of force f1. okay, फोर्स f1. देखो यहाँ पे मैंने f2 लिया यहाँ पे और यहाँ पे f1 आएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अभी यहाँ पे एंगल हम देखेंगे. सो व्हाट वी कैन राइट आफ्टर दिस बाय यूजिंग द सिमिलरली. सो टाउ इज इक्वल टू, टाउ कैसे डिफाइन करेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू, ओके, सो टॉर्क विल बी r12 प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r12 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है? f1. तो यहाँ पे आएगा f1. सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैग्नीफाइड फॉर्म में कैसे आएगा? r12 f और r12 साइन थीटा इंटू f, और दिस कैन बी रिटन एज r12 f साइन थीटा. यू कैन राइट लाइक दिस. ओके, यहाँ पे एंगल जो है, दिस एंगल विल बी नॉट थीटा, यहाँ पे एंगल अलग रहेगा. लेट दिस एंगल इज डिफरेंट. सो आई एम टेकिंग दिस एंगल इज बीटा, ये बीटा लेंगे. दिस एंगल इज अल्फा, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे अल्फा आएगा. दिस विल बी साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा आएगा. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. सिमिलरली टाउ कैन बी रिटन एज टॉर्क फॉर मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू, कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ द r21 क्रॉस f2 which can be written as r21 sin beta into f2. So this can be written as r21 f sin beta, r2f sin beta. ओके, तो यहाँ पे f2 जो है, सॉरी दिस इज f2, बट f1 एंड f2 आर इक्वल. ओके, यहाँ पे f1 ले लो. सो बट f1 इज इक्वल टू माइनस f2. अगर मैग्नीट्यूड में लिखना है तो f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f. सो टाउ कैन बी रिटन एज सिंपली टाउ इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? r f साइन अल्फा, और विच इज इक्वल टू r f साइन बीटा.
वो दोनों सेम है, दोनों इक्वल लिख सकते हैं, राइट. सो दिस वी कैन राइट टाउ इज इक्वल टू, सो विच इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो ये जो है, ये जो डी है, दिस डी विल बी द, अगर ये भी बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा. दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, ये बीटा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो ये जो डी पैरामीटर होगा, दिस डी विल बी द साइन थीटा, R12 साइन थीटा. ये जो कॉम्पोनेंट है, तो ये कॉम्पोनेंट कौन सा होगा, डी कैन बी रिटन एज, बट डी विल बी R12 साइन अल्फा और डी आल्सो इज इक्वल टू R21 साइन बीटा फ्रॉम द फिगर. एंड दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट डी. सो एफ इंटू डी, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दैट इज द मोमेंट ऑफ कपल. तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा मोमेंट ऑफ कपल. सो दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस एक बार समझा देता हूँ. ये रिजिड बॉडी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच में डिस्टेंस जो स्मॉल टी है, दिस आर दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1 F2 है, ये F1 है, एंड एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पोजिशन वेक्टर. अभी देखो यहाँ पे पोजिशन वेक्टर कौन कौन से है, R12 और R21. R12 ड्रॉन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2 टू दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1. दोनों के बीच में जो दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, हम उसको क्या बोलेंगे, पोजिशन वेक्टर R12. और R21 क्या होगा, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1 टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2. अंडरस्टैंड. तो ये जो एरो है, एरो पे ध्यान देना है. उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ कपल का और टॉर्क का, दैट इज डिस्टेंस R12, इसको फाइंड करेंगे कपल एट दिस पॉइंट. ओके, मोमेंट ऑफ कपल एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट. सो एनी वन ऑफ द फोर्स R12 into F1, R12 sin alpha into F, R12 F1 sin alpha. Okay, and similarly tau can be written as R21 into F2, R21 sin beta into F2, R21 F sin beta. Okay, but from the figure, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्स के बीच में, वो हम क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू R12 साइन अल्फा और डी इज इक्वल टू R21 साइन बीटा. इज दैट क्लियर? एंड हेंस we can derive the expression for moment of couple. Understand? यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ कपल है, इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय दी अनदर फोर्स, राइट. एक सिंगल फोर्स लगा के तो नहीं होगा. अगर ये कपल को न्यूट्रलाइज करना है, सपोज अगर मान लो इफ हम अप्लाइंग अ फोर्स और कपल ऑन दिस, राइट, इसको काउंटर बैलेंस करने के, न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा. जब मैं खोलूँगा बॉटल तो एंटी क्लॉकवाइज ओपन निकलेगा बॉटल. जब क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या होगा, बंद होगा. सो दिस कपल जो है एंटी क्लॉकवाइज कपल इज न्यूट्रलाइज बाय क्लॉकवाइज कपल. अंडरस्टैंड? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस. Now we will derive the expression for एक important question is, show that the torque due to couple is the same about any point in the plane of the couple. ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, 2 या 3 मार्क ले. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ऑलरेडी टाइम ऑफ हो गए. सो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर और कुछ न्यूमेरिकल भी लेंगे इफ यू गेट अ टाइम. थैंक यू. हैव अ गुड डे.